Yesterday we have learned how to arrange any word in alphabetical order, okay, which was on page number 25. Now, on to next page, question number G. Given below is a list of items that your mother is going to buy. Write down what are countable and which are uncountable nouns. Okay, so given below means these, given below means this, below means जो नीचे, that is at lower position, or here. Okay, here we have given a list of items, so we have given a list of items right here, like oil, banana, candles, etc. So that your mother is going to buy, so your mother is going to buy these items, these list of items. Now you have to tell which of these items are countable and which of these items are uncountable. What is the meaning of countable? That you can count. What is the meaning of uncountable? That means you can't count that. Okay, so count, you can write C for countable, and for uncountable you can write UC. UC means uncountable. So countable nouns are those which you can count. Okay, and uncountable nouns are those which you cannot count. Okay, like the number of students in your class. How many students are there in your class? Okay, you can count, you know. How many members are there in your family? You can count. Yes, there might be 4 members, 5 members. Okay, you can count. So you can count the number of members in your family, but can you count milk that you drink? No. That means milk is an uncountable noun, whereas or other thing, that number of members in your family is countable. Okay, so let's do this. First is oil. So is oil countable or uncountable? Can you count oil? Oil, no, so uncountable. Banana, can you count banana? Do you eat banana? Okay, do you eat banana? Yes. So can you count the number of bananas? Banana, yes, so it is countable. Grapes, okay, grapes, so it is written grape is grapes. Can you count grapes? Yes, so countable. Wheat, can you count wheat? Otherwise it seems as that we can count wheat, but here wheat is wheat, there is no plural form for wheat. Okay, that means, so you have to write uncountable. Similarly for bread you have to write uncountable because there is no plural form for it. Okay, so you have to write uncountable. Candles, so do you light candles? Yes, in Diwali time you bring lot of candles from market. So can you count those candles? Yes, so it is countable. Cheese, uncountable. Sugar, uncountable. Pickle, uncountable. Mango, countable. ओके, सो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपकी जो मम्मी है वो मार्केट से ख़रीदा है उन्होंने कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ें जिनकी लिस्ट बिलो नीचे दे रखी है। तो आपको उसमें काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है ये बताना है। काउंटेबल का मतलब, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि आपका हो गया बनाना, काउंट कर सकते हो ना, तो वो काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल, क्या आप ऑयल को काउंट कर सकते हो? नहीं, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। काउंटेबल के लिए सी, अनकाउंटेबल के लिए यूसी लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑयल है, ये अनकाउंटेबल है। बनाना को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे काउंटेबल लिखना है। ग्रेप्स है, देखो एक होता है ग्रेप, ग्रेप सिंगल, एक ग्रेप को कहते हैं ग्रेप, और उसका प्लूरल क्या होगा? ग्रेप्स। तो इसका प्लूरल फॉर्म बन गया ना, तो इसको हम काउंटेबल में डालेंगे। वीट है, वीट का मतलब गेहूँ। अब गेहूँ को वैसे देखें तो हम काउंट कर सकते हैं, पर वीट का क्या कोई प्लूरल फॉर्म होता है? वीट्स, नहीं, तो इसको हम अनकाउंटेबल में डालेंगे। ब्रेड,
ये आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। ब्रेड आपका अनकाउंटेबल है। उसके बाद कैंडल्स, कैंडल्स काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल में आप काउंट करते भी होगे, है ना। आपने कैंडल्स देखे हैं ना, दीपावली पे आपके घर में कितने सारे कैंडल्स जलते हैं, तो आप उन कैंडल्स को काउंट कर सकते हो। चीज़ का मतलब होता है पनीर, ठीक है, तो पनीर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल हो गया। पिक्कल का मतलब अचार, अचार को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम अनकाउंटेबल हो गया। मैंगो, मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जिस भी चीज़ का प्लूरल फॉर्म बन सकता है, जैसे यहाँ पे मैंगो है तो इसका मैंगोस बन सकता है ना, कैंडल का कैंडल्स बन सकता है, तो जिसका प्लूरल फॉर्म बनता है जनरली वो आपके काउंटेबल होते हैं, और दूसरे वाले जिसका नहीं बन सकता, जैसे ऑयल का ऑयल्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऑयल्स, तो वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जिसको आप गिन सकते हो वो काउंटेबल, जिसको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज this we have given. Nouns are of two types. Singular noun means one of something and plural noun means more than one of something. दो टाइप के नाउन होते हैं। नाउन का मतलब किसी भी संख्या, जो भी कोई नाउन का आपको मतलब पता होगा। नाउन जो है किसी भी कोई भी चीज़ है, जैसे नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। कोई व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम हो, या कोई चीज़ हो, ठीक है, उसको हम नाउन कहते हैं। ये मैं डिटेल में आपको जब ग्रामर सेक्शन होगा तब मैं आपको समझाऊंगी, बट यहाँ पे अभी आपको सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के बारे में बोला गया है। सिंगुलर का मतलब जो एक हो, ठीक है, प्लूरल का मतलब बहुत सारे, अनेक। ओके, सिंगुलर जैसे यहाँ पे लिखा है बुक, सो बुक्स, बुक मीन्स ओनली वन बुक, बुक्स मीन्स मैनी बुक। ब्रांच, ब्रांचेस, ओके, वन मैनी ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रांचेस। विश, विशेस। बनी, बनीस। लीफ, लीव्स। नाइफ, knives. Okay, so we have given singular noun here and we have converted them into plural noun here. So it is so how to convert this? Suppose just by adding s, so most of the words gets changed from singular to plural by adding s at the end. Okay, but in few cases we have to check the rules. For example, add es when the words end in sh or ch. Okay, so this word branch, this word end with ch, so to convert it in plural form we have to add es at the end. Okay, if the word is ending with sh, then also we have to add es at the end to make it plural. Third, changes y to ies. So if the word is ending with y and if we want this word to convert into plural form, then we have to write ies, replace y with ies. Okay, so you have to change this into ies, but here you have to add es. Okay, there is difference in this. Leaf, change y to ves, f to ves, so leaf end with alphabet f, so we have to change f to es, so to make it plural. Leaf, leaves, if it end with fe, then we have to change this fe into ves, ves. So in this way we can change singular noun into plural noun. Okay, and
here write the plural and singular form. So here few words are given, so you have to convert them into plural form by using the same rule. Okay, so यहाँ पे क्या बोला है, नाउन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन का मतलब वन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एक. जैसे कि आपका बुक है, एक बुक को का मतलब बुक एक है ना, एक जो चीज़ होती है वो सिंगुलर में आ जाएगा, अनेक बहुत सारे वो प्लूरल में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन्स दे रखे हैं. ठीक है, और उसको जो है आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्लूरल में. तो हम आपका ग्रामर में कंप्लीट करवाएंगे नाउन बिल्कुल अच्छी तरह से, पर अभी हम जो है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ लेते हैं. और नाउन का एक मैं बेसिक बता देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब बुक है, जनरली हम ऐड कर दे एस तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में. जैसे एक बुक को तो बुक कहते हैं, बट बहुत सारी बुक को बुक्स कहते हैं. तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड किया है, यहाँ पे लास्ट में एस वर्ड ऐड किया है. बट कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे हम सिर्फ एस ऐड करने से काम नहीं चलेगा. जैसे कि ब्रांच है, तो जो भी वर्ड किससे सी एच से एंड हो रहे हैं ना, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको लास्ट में ई एस ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि ब्रांच, तो यहाँ पे सी एच है, तो सी एच को किस से, सी एच के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, बी आर ए एन सी एच ई एस, तो ये क्या बन गया, ब्रांचेस. तो ये प्लूरल है. जो वर्ड सी एस एच से एंड हो रहे हैं, जैसे विश, एस एच से एंड हो रहा है, तो इसको आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस, WISHES, विशेस. वाई से एंड हो रहे हैं, तो क्या उस वाई से एंड होने वाले को वाई को चेंज करना पड़ेगा किसमें, IES में. जैसे यहाँ पे बढ़नी है, तो इस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, IES. तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर CH और SH से एंड हो रहे हैं तो CH के बाद ES लगा रहे हैं, पर यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वाई को हटा के पूरी तरह IES बना रहे हैं. ठीक है, लीफ, F को हटा के किस में बनाना है, VES में, तो F की जगह क्या लगेगा VES. और नाइफ है, FE है, यहाँ पे FE को अगर से एंड हो रहा है कोई वर्ड तो उसको चेंज करके VES लगा देना है, तो नाइफ का नाइव्स बन गया. बुक का मतलब किताब, ब्रांच का मतलब जो होता है, पेड़ का ब्रांच देखा है ना आपने, है ना, पेड़ों में ब्रांचेस होती है, उसकी अलग अलग उसके हाथ नहीं जा रहे होते, मीन जो अलग अलग उसकी शाखाएं जा रही होती है, उसको ब्रांच कहते हैं. विश का मतलब कोई भी आपकी विश होती है, मनोकामना होती है. बनी तो आपने ये रहा बनी. ठीक है, उसके बाद लीफ का मतलब एक पत्ता, नाइफ का मतलब चाकू, एक चाकू नाइफ, बहुत सारे चाकू नाइफ्स. ठीक है, तो आपको इन्हीं रूल का यहाँ पे यूज़ करना है और इसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है. जैसे मैंने यहाँ पे L है, तो यहाँ पे कोई L के लिए तो कुछ नहीं है ना, तो जस्ट ऐड S, टेल बिकम टेल्स. अब बेबीज़ है, IES लगा हुआ है, ये तो प्लूरल और सिंगुलर मिक्स दे रखे हैं. अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसको आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, अगर कोई चीज़ प्लूरल है उसको आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पे IES है, तो IES ये रहा, तो IES को किस में चेंज कर दो, Y में, यानी कि IES को हटाओ और Y बनाओ, तो आपका जो है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है. SH से एंड हो रहा है ना ये वर्ड, तो SH ढूंढो. यहाँ पे SH से एंड होने वाले में क्या करते हैं, ES को ऐड कर देते हैं, तो BUSHES. ऐसे आपको सारे करने हैं. ठीक है, टेल का मतलब होता है पूंछ, बेबीज़ का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बेबी नहीं होते वो. बुश का मतलब झाड़ी, पोटैटोज़ का मतलब आलू, बहुत सारे आलू. गर्ल का मतलब लड़की, मैंगो का मतलब आम. बंच का मतलब जैसे बंच ऑफ कीज, बंच होता है गुच्छा. ठीक है, लेडी का मतलब होता है एक महिला. तो आपको इन सबको जो है
जो प्लूरल है उसको सिंगुलर और जो सिंगुलर है उसको प्लूरल में चेंज करना है बाय यूजिंग दिस रूल. Okay, I have written the answer. You can first do it yourself and then you can match it from here. So I hope that you understood today's lecture. In today's lecture we have learned about countable and uncountable noun. Okay, and we studied about singular nouns and plural nouns and how to convert. Okay, so you have to do this part G and H in book only. So I hope you understand today's lecture. Thank you so much. Have a nice day. Bye.